Hello, my dear students. This is Ashish Kumar Sinha, English subject teacher of DAV Public School CCL Girdi. I welcome you all in our video classes. Students, today we will discuss an interesting play, The Foolish Man. So, without further go, let's start the story. Let's start the chapter. Here is an interesting play about Birbal, which shows his great sense of wit and humor. यह एक प्ले है जिसमें बिरबल के बारे में बताया गया है. यह प्ले जो है बिरबल के ग्रेट सेंस ऑफ विट एंड ह्यूमर को बताता है, दर्शाता है. दैट मीन्स बिरबल वॉज द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ अकबर इन द एंटायर किंगडम ऑफ अकबर. बिरबल वॉज द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ ऑल. So here this play describes about his great sense of wit and humor. So now we will start the play. We will start this act. We will start this chapter. Read and act the play in the class. Okay. The Foolish Man. Here this play is divided into three parts: Scene 1, Scene 2, and Scene 3. So we will start with Scene 1. Scene 1 starts from Emperor Akbar's court. Here Akbar is smiling. Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? Akbar is smiling. Akbar asks Birbal. Okay, मुस्कुराते हुए अकबर जो है वो बिरबल से पूछता है, बिरबल, डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा? अकबर मुस्कुराते हुए बिरबल से ये कहता है, पूछता है, बिरबल तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए आगरा में 5 मूर्ख लोगों को खोज के ला सकते हो? अकबर आस्क बिरबल दैट बिरबल ही कुड फाइंड, बिरबल यू कुड फाइंड. Akbar asked Birbal that he could find him the 5 most foolish men in Agra. Birbal replied without getting disturbed. Okay, without getting disturbed, because Birbal always solved Akbar's problem, most of the problems very nicely, very easily, without getting disturbed. Okay, so Birbal replied Akbar without getting disturbed that I will try, my lord. That बिरबल रिप्लाइड अकबर दैट ही वुड ट्राई. बिरबल जो है वो अकबर को कहता है कि माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, मैं कोशिश करूँगा. विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, बिरबल रिप्लाइड दैट ही वुड ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा. Scene 2. Now we will start Scene 2, students. Here in the Scene 2, Birbal is walking through the streets of Agra, looking around carefully. He sees a man lying on his back in a puddle of water, his arms stretched wide above his head. Now Birbal is walking through the streets of Agra. अब बिरबल जो है वो आगरा की गलियों में घूम रहा था. लुकिंग अराउंड केयरफुली, चारों तरफ काफ़ी केयरफुली देख रहा था. इन ऑर्डर टू फाइंड द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा. ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा, बिरबल इज़ वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा, लुकिंग अराउंड केयरफुली. काफ़ी केयरफुली जो है वो आगरा की गलियों में जो है उन मूर्ख लोगों को खोज रहा था. He sees a man lying on his back in a puddle of water, his arms stretched wide above his head. अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बिरबल जो है वो एक आदमी को देखता है जो पीठ के बल लेटा हुआ था. इन अ पडल ऑफ वाटर, कीचड़ से भरे हुए थोड़े से पानी में. कीचड़ से भरे, पडल ऑफ वाटर मतलब होता है कि मैंने कीचड़ से भरा हुआ पानी. कीचड़ से भरे हुए पानी में जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ था और अपने आर्म्स को जो है स्ट्रेच्ड, फैलाए हुए था अपने सिर के ऊपर. हिज आर्म्स स्ट्रेच्ड वाइड अबव हिज हेड.
उसका आर्म्स जो था वो उसके सिर के ऊपर फैला हुआ था. All of a sudden Birbal spotted that man. All of a sudden Birbal saw that person lying on his back in a puddle of water and his arms. The man stretched his arms wide above his head. Now Birbal, what are you trying to do? Birbal asked the man, what are you trying to do? बिरबल जो उस आदमी से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो ये. The man, I am trying to stand up. I slipped and fell into this puddle while I was on my way to buy some cloth for my wife. अब वो आदमी रिप्लाई करता था. मैन रिप्लाइड कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप. I slipped and fell into this puddle while I was on my way to buy some cloth for my wife. अब वो आदमी कहता है कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ. The man replied Birbal that he was trying to stand up on his feet because when he was going to buy some clothes, to purchase some clothes for his wife, he slipped and fell into this puddle of water. वो आदमी कहता है कि मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जा रहा था. इसी रास्ते से होते हुए अचानक से मैं स्लिप कर गया और इस कीचड़ वाले पानी में गिर गया. नाउ आई वॉज ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन माई फीट बट आई कुडंट. बट आई वॉज अनेबल टू स्टैंड बिकॉज आई वॉज अनेबल टू स्टैंड because I am not using my hands. Now अब बिरबल जो इस आदमी से कहता है, why don't you use your hands then? अब बिरबल इस आदमी से कहता है कि तुम अपने हाथों का यूज़ क्यों नहीं करते हो? Why are you not using your hands? The man, but I can't do that. अब ये आदमी रिप्लाई करता है, but I can't do that. If I change the position of my hands, I will lose the measurement of the length of cloth my wife wants. अब वो आदमी कहता है कि I can't do that sir because if I change the position of my hands I will lose the measurement of the length of cloth my wife wants. क्योंकि अगर मैं अपने हैंड के पोजीशन को चेंज करता हूँ तो मेरी वाइफ का जो कपड़ा है, जो मेरी वाइफ जिस कपड़े को चाहती है खरीदना, उसका मेजरमेंट मैं खो दूँगा. That's why I couldn't change the position of my hands. That's why I stretched my arms wide above my head because I don't want to lose the measurement of the length of the cloth my wife wants. I am going to purchase for my wife. इसीलिए मैं अपने हाथ को जो है, मैं अपने हैंड्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ खड़े होने के लिए, क्योंकि जो मेज़रमेंट, कपड़े का मेज़रमेंट है वो मैं लॉस कर दूंगा, वो मैं खो दूंगा. बिरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हेयर एंड सेट्स हिम ऑन हिज फीट. अब बिरबल क्या करता है, बिरबल समझ गया कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है. नाउ बिरबल came to know that he was the most foolish man in this city. So बिरबल होल्ड्स द फेलो बाय द हेयर एंड सेट्स हिम ऑन हिज फीट. अब बिरबल उसके बालों को पकड़कर उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देता है. बिरबल को तो पता चल गया. नाउ बिरबल कैम टू नो बाय हिज एक्शन दैट ही वॉज द मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा. सो बिरबल हैज़ फाउंड वन फुलिश मैन. The man, thank you. His arms still above his head. You have really helped me. अब वो आदमी जो है बिरबल को थैंक्स कहता है. ये आदमी जो है बिरबल को थैंक्स कहता है और इसलिए थैंक्स कहता है क्योंकि बिरबल ने उसकी मदद की थी, बिरबल उसका हेल्प किया था उसको उठने में. सो द मैन थैंक्ड बिरबल फॉर हेल्पिंग हिम, ओके, फॉर हिज कॉपरेशन एंड ऑल्सो टोल्ड बिरबल दैट he has really helped him. वो आदमी जो है बिरबल का धन्यवाद करता है, थैंक्स कहता है उसे, क्योंकि बिरबल ने उसे बिरबल जो है उसका हेल्प किया था. बिरबल हेल्प्ड हिम इन ऑर्डर टू गेट अप, इन ऑर्डर टू स्टैंड
sets him on his feet. In order to set him on his feet. So the man thanked Birbal for his help. Now Birbal, please come with me. Now Birbal told the man, प्लीज़ कम विथ मी. अब बिरबल जो है उस आदमी से कहता है कि मेरे साथ आओ प्लीज़. बिरबल रिक्वेस्टेड द मैन टू कम विथ हिम. अब वो आदमी, वो मैन, वो फर्स्ट पुलिस मैन और बिरबल जो है दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं. एज दे मूव अलॉन्ग, बिरबल नेक्स्ट सीज अ मैन राइडिंग अ हॉर्स कैरिंग अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड. जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ते हैं, बिरबल और वो फर्स्ट पुलिस मैन जैसे आगे बढ़ता है, just taking few steps, Birbal again saw a man riding a horse and the man was carrying a bundle of straw on his head. अब जो है बिरबल जो है एक आदमी को देखता है जो घोड़े पर सवार है, घोड़े पर सवार है और अपने सिर के ऊपर जो है बंडल स्ट्रॉ का जो है एक बंडल, एक पुआल का जो है बंडल अपने सिर के ऊपर रखे हुए है. Birbal was surprised to see the man riding on the horse and carrying a bundle of straw on his head. बिरबल इस बात को देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ है और अपने ऊपर जो है एक बंडल ऑफ स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ के बंडल को जो अपने सिर पे लिए हुए, क्या कारण है? what is the reason behind it? Why the man was carrying a bundle of straw on his head? Birbal, why do you carry that straw on your head? Can't you keep it on the horse back behind you? अब बिरबल जो इस आदमी से कहता है कि तुम ये स्ट्रॉ के बंडल को अपने सिर पे क्यों लिए हुए हो? क्या तुम इस स्ट्रॉ के बंडल को, जो बंडल ऑफ स्ट्रॉ जो है, घोड़े के पीठ पे भी तो अपने पीछे रख सकते हो? बिरबल asked the man that why he was carrying that bundle of straw on his head, because he could keep it on the horse back behind him. Birbal asked the man. Second man, but I can't do that, sir. This horse is very old and very weak. It might die with the extra weight. Already it has to carry me. Now second man replied that he couldn't do that. Second man replied Birbal that he couldn't do that because his horse is very old and very weak and it might die with the extra weight, with the extra burden, and the horse has to carry him already. The horse has to carry him. So the man don't want to put some extra weight, put some extra burden on the horse because his horse is very old and very weak. वो सेकंड मैन जो वो रिप्लाई करता है बिरबल को कि मैं ऐसा नहीं कर सकता सर, क्योंकि मेरा घोड़ा जो है वो बूढ़ा हो गया है और बहुत कमज़ोर हो गया है. वीक मतलब कमज़ोर होता है, वीक मीन्स हियर कमज़ोर हो गया और वो मर सकता है. अगर उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा बर्डन डाल दूँ तो इट माइट डाई बिकॉज माई हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक. सो आई कुडंट पुट सम एक्स्ट्रा वेट, सम एक्स्ट्रा बर्डन ऑन माई हॉर्स एंड ऑलरेडी माई हॉर्स हैज़ टू कैरी मी. अगर मैं अपने घोड़े के ऊपर एक्स्ट्रा वेट या एक्स्ट्रा बर्डन डाल दूँ तो मेरा घोड़ा मर भी सकता है सर, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा. अब बिरबल यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ फॉलो मी. बिरबल कहता है यू आर जस्ट द पर्सन, तुम वही पर्सन हो जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ, जिसकी तलाश करने के लिए मेरे सम्राट अकबर ने कहा, मेरा एम्पायर अकबर ने कहा है यू आर जस्ट द पर्सन, सेम पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. So please follow me. Birbal requested the second man to follow him. So far Birbal has found 2 policemen. 2 policemen जो है वो बिरबल को मिल गए, अब बच गए 3. अब 3 और बचे हुए हैं because अकबर asked Birbal to find 5 policemen in the city of Agra. Birbal wanders with the 2 policemen following him. The first one with his arms still above his head, the second one
still riding his horse with the bundle of straw on his head. Suddenly he sees a man bent in half, looking for something under a street light. बिरबल जो है वो दोनों पुलिसमैन के साथ, जो वो पुलिसमैन वो दोनों पुलिसमैन फर्स्ट और सेकंड दोनों बिरबल के साथ पीछे पीछे आ रहे थे। वो पुलिस द फर्स्ट वन विथ हिज आर्म्स स्टिल अबव हिज हेड, अभी भी जो पहला मूर्ख आदमी था वो अपने आर्म्स को अपने सिर के ऊपर अभी भी फैलाया हुआ था। स्टिल द फर्स्ट पुलिसमैन स्ट्रेच्ड हिज आर्म अबव हिज हेड एंड द सेकेंड वन स्टिल राइडिंग हिज हॉर्स, और जो दूसरा पुलिसमैन था वो अभी भी घोड़े पर सवार था विद द बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, और अभी भी जो है अपने सिर के ऊपर जो है अपने हेड पर जो है वो बंडल ऑफ स्ट्रॉ को लिए हुए था। उसको लग रहा था कि मैंने घोड़े के ऊपर वो एक्स्ट्रा वेट नहीं देगा। अरे घोड़ा ही तो उसको भी उस सेकंड मैन को भी कैरी कर रहा था, और उसके ऊपर जो बंडल वो अपने सिर पे जो बंडल ऑफ स्ट्रॉ लिए, पुआल का जो बंडल लिए हुआ था, स्ट्रॉ जो लिए हुए था, उसको भी घोड़ा ही तो कैरी कर रहा था। तो कितना बड़ा मूर्ख था। हाउ मच बोथ द पर्सन्स वर फुलिश, it shows through their actions, because Birbal judged them to be foolish from their actions. Birbal, what are you searching for? अब बिरबल वो थर्ड मैन से पूछता है। बिरबल asked the third man what he was searching for. The third man replied, बिरबल पूछता है थर्ड मैन से कि तुम क्या खोज रहे हो, इस स्ट्रीट लाइट के अंडर में आधा झुक कर जो है तुम क्या खोज रहे हो। द थर्ड मैन रिप्लाइड, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस, पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग। थर्ड मैन जो है वो रिप्लाई करता है कि सर मैं अपना डायमंड रिंग यहीं पर कहीं अंधेरे में खो दिया हूँ। पॉइंटिंग टू अ डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर ही इज स्टैंडिंग, यानी एक डार्क स्पॉट की तरफ, एक अंधेरे स्थान की तरफ जो है, एक डार्क स्पॉट की तरफ जो है पॉइंट करते हुए जो है वो आदमी कहता है कि मैं उस अंधेरे जगह पर जो है मैं अपना डायमंड रिंग मेरा कहीं खो गया है। माई डायमंड रिंग हैज़ बिन लॉस्ट समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस। ओके, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ पर नहीं बल्कि कहीं दूसरी ओर इशारा करते हुए कहता है कि मेरा डायमंड रिंग वहाँ अंधेरे में खो गया है। स्पॉट मतलब जगह होता है, डार्क स्पॉट। सिंस आई कुडेंट सी ओवर देयर आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हियर इन द लाइट। अब वो कहता है चूँकि सर मुझे वो रिंग वहाँ पर नहीं मैं खोज सका, आई वॉज अनेबल टू फाइंड माई डायमंड रिंग ओवर देयर, सो आई एम लुकिंग फॉर माई रिंग हियर इन द लाइट अंडर द स्ट्रीट लाइट। इसीलिए मैं अपने उस रिंग को ये स्ट्रीट लाइट के नीचे जो है खोज रहा हूँ। बताओ खोया कहाँ पर है उसका रिंग और खोज कहाँ रहा है? वो अंधेरा में नहीं मिलेगा, इसलिए लाइट के नीचे खोज रहा हूँ। खोया है उसका रिंग अंधेरे में, डार्क स्पॉट में एक जगह वहाँ पर कहीं खोया था, बट वो ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज रिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट। दैट हाउ मच द मैन वॉज फुलिश, इट शोज थ्रू हिज एक्शन। एंड बिरबल अगेन judged the person to be foolish from his action। उसके एक्शन से जो है बिरबल जो है वो जज करता है कि ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है। so far बिरबल has found 3 most foolish men in the city of Agra। बिरबल please come with me, I will help you to find your ring। अब बिरबल उस थर्ड मैन से कहता है डोंट वरी, please come with me। Birbal requested the third man to come with him and also told him that he would help him to find his ring। और बिरबल जो उस आदमी से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे रिंग को खोजने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरे साथ आओ, कृपया तुम मेरे साथ आओ। Scene 2 is over my students, my dear students। Now come to scene 3। Now again scene 3 in Akbar's court। Okay, again scene 3 starts in Akbar court। Now Birbal to Akbar। अब बिरबल अकबर से कहता है सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा। बिरबल अकबर से कहता है कि सर मैं आपके लिए 3
मोस्ट फुलिश मैन आगरा के शहर में खोज के ले आया। आगरा के शहर में, इन द सिटी ऑफ आगरा, आई हैव फाउंड द 3 मोस्ट फुलिश मैन एंड सर आई जज देम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शन। और पता है सर, मैं इनके एक्शन से इनको जज किया कि ये लोग फुलिश है। आई जज देम दैट दे वर फुलिश फ्रॉम देयर एक्शन। सो आई हैव फाउंड the 3 most foolish men in the city of Agra and I have brought them before you. I judged them to be foolish from their actions, sir. अकबर रिप्लाई करता है, रियली वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब बिरबल, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन, नॉट 3। अब जो है अकबर जो है बिरबल से कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, यू हैव डन अ गुड जॉब, रियली अ वेरी गुड जॉब, बट बिरबल आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट फुलिश मैन। लेकिन बिरबल, मैंने तुम्हें 5 मूर्ख आदमियों को खोजने के लिए कहा था, नॉट 3। अकबर स्माइल्स, अकबर मुस्कुराते हुए कहता है, अकबर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें 5 फुलिश मैन को लाने के लिए कहा था, 3 नहीं, लेकिन यू हैव ब्रॉट ओनली 3 most foolish men in the city of Agra. I have told you to bring 5 most foolish men. Where are the rest of the foolish men? Where are the other 2 foolish men? Birbal, sir, the last 2 most foolish men in Agra are you and I. अब बिरबल कहता है कि सर, जो लास्ट 2 foolish men आगरा में है वो और कोई नहीं, they are none but you एंड आई, आप और मैं, और कोई नहीं। जो 2 और मूर्ख लोग बचे हुए थे वो एक आप हैं और एक मैं हूँ, फुलिश मैन। यू बिकॉज यू सेट मी सच अ फुलिश टास्क, आप मूर्ख इसलिए है क्योंकि आपने मुझे ये बेकार का ये फुलिश टास्क दिया। एंड आई बिकॉज आई फुलिशली कैरिड आउट योर ऑर्डर्स, और मैं मूर्ख इसलिए हूँ क्योंकि मैंने आपके इस ऑर्डर को जो है मूर्खतापूर्वक जो है आपके इस ऑर्डर को मैंने एक्सेप्ट किया। द लास्ट 2 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा आर नन बट यू एंड आई, बिकॉज यू हैव गिवन मी सच अ फुलिश टास्क सर एंड आई एक्सेप्टेड, आई कैरिड आउट योर ऑर्डर्स विदाउट थिंकिंग, विदाउट getting disturbed. I carried out your orders foolishly. That's why the rest 2 foolish men in the city of Agra are none but you and I, sir. आपको और मेरे को छोड़कर और इस आगरा के शहर में कोई मूर्ख लोग नहीं है। That makes 5 doesn't it, sir? हो गया ना सर 5, है कि नहीं? 5 हो गया ना, वो 3 और हम लोग दोनों। अकबर लाफिंग, अकबर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते नहीं, सॉरी, लाफिंग मतलब मुस्कुराना नहीं, सॉरी, लाफिंग मीन्स हंसना। अकबर जो है ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। इट सर्टनली डज, बिल्कुल 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 बिरबल, तुमने सही कहा, बिल्कुल तुमने सही कहा, एकदम निश्चित। सर्टनली मतलब निश्चित तौर पर तुमने सही कहा। इट सर्टनली डज, बिल्कुल। सो बिरबल वॉज द वाइजेस्ट मिनिस्टर of Akbar because he solved most of the problems of Akbar very nicely, very easily. No other minister was as wise as Birbal in the kingdom of Akbar, and Akbar also knew it. So Akbar always gave difficult task to Birbal, and Birbal solved all the task very wisely. So my dear students, the chapter is over, the story is over. Now again we will meet in our next video class with some new topics, with some new chapters. Till then, take care of yourself. Thank you very much. Have a nice day ahead.